Okay, so let us start. So, see, today we will learn again the another method. Okay, we were discussing how to design flexible pavement, design the thickness of the flexible pavement. Okay, the first method was your group index method, then CBR, then modified CBR. This three method has been completed. Okay, now this is our fourth method, and this is also the numerical. The numerical which we will solve today is important. Okay, for your semester purpose. The topic name is what? Design a flexible pavement by Burmester two-layer method. Okay, as well as the instrument or the experiment that we are conducting in order to find, to use whatever the data that we are using. Okay, and the experiment that we are performing for this method is the plate load test. Okay, I will show you how it is conducted, and we require some data from this plate load test so that we can use those data in this method. Okay, the Burmester two-layer method. As we said, our pavement is what? It is a layer structure. Why? Because structure means what? It will tackle some load throughout. It has to tackle some load without any failure throughout its design life. So it is also known as a structure, right? Pavement is also acting like a structure, but it is a layered structure. So as per Burmester, so who is the Burmester? Donald Martin Burmester. Okay. So he has developed a method for analyzing this layer system or the layered structure. Okay, pavement layer structure, and he has assumed that this layer, how many layers comprises this pavement? Pavement consists of 2 layers. Okay, as per this method or as per Donald Martin Burmester, he said that our pavement structure is made up of 2 layers. Okay, and yes, who is Donald Martin? He is a pioneer of. He is basically a pioneer in field of soil mechanics. Okay, and in this university has done his. He's a professor in civil engineering. Okay, now what is the aim? I said that we have to determine we have to do the design of the pavement. Now design means what? We have to determine the thickness of the pavement, and here the concept which we are using is what? It is based on modulus of elasticity of different layers. Okay, we will see one term, capital E, we will see. Okay, this capital E is nothing but what? This is the modulus of elasticity, or we can say it signifies the properties of each layer. Okay, and as we said, as per his assumption, what he has assumed that our pavement consists of 2 layers, layer 1 and layer 2. Okay, so for layer 1, Young's modulus or modulus of elasticity is E1, and for layer 2 it is E2. In many questions they will not give you, they will only give you E1 and E2, like that they will give values. Okay, values of E1 by E2 or E1 by E2 ratio they will be giving. Okay, but now what is layer 1 and what is layer 2? See, layer 1 is what? This is actually the pavement. ओके ये क्या है? ये है पेवमेंट, और लेयर 2 इज व्हाट? लेयर 2 इज द सबग्रेड. तो बोला गया क्या क्या? सबग्रेड के ऊपर जितना भी लेयर होता है वो क्या होता है? इट इज बेसिकली पेवमेंट. हम बोले थे फ्रॉम टॉप सरफेस से ये वाला जो भी सबग्रेड का नीचे का है, फ्रॉम हियर टिल हियर. ओके, दिस इज व्हाट? दिस इज द पेवमेंट, राइट? एंड दिस लेयर 1 इज नथिंग बट द पेवमेंट. ओके, और बोला गया कि पेवमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली, एज पर हिज थ्योरी, ये पेवमेंट एक लेयर हो गया और सबग्रेड दूसरा लेयर हो गया. ठीक है, सो 2 लेयर से ये कंप्राइज किया हुआ है. ओके, सो in many questions or in many problems they will give you EP instead of E1, they will give you EP. Okay, तो EP का मतलब क्या है? इलास्टिक मॉड्यूलस फॉर पेवमेंट लेयर. और ES का मतलब क्या है? ES equals to E2, or we can say ES is what? It is the elastic modulus for subgrade layer. Okay, ये क्लियर है ना? ये वाला कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ओके, yes,
जो चार्ट हम लोग यूज करेंगे वहां पे E1/E2 भी हो सकता है रेशियो, E1/E2 का भी रेशियो दे सकता है, या EP/ES भी दे सकता है, और दे कैन प्रोवाइड उल्टा, मतलब ES/EP भी बोल सकते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो कौन सा E1 है कौन सा E2 है ये छोड़ दो, ये तुमको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखो कि टॉप लेयर इज द पेवमेंट लेयर, उसका EP होगा, एंड द बॉटम लेयर इज द सबग्रेड लेयर, उसका ES होगा। सबग्रेड विल बी बिलो द पेवमेंट लेयर, राइट, ये हमको पता है पहले से। और ये वाला क्या है, ये सपोज हम बोले थे, वी हैव ऑलरेडी एज्यूम दैट आवर कॉन्टैक्ट एरिया, जहां से तुम्हारा लोड ट्रांसफर होता है नीचे लेयर्स में, कहां से जाता है, व्हील लोड से, पहले जाता है टोटल व्हीकल से एक्सेल में जाता है, फिर एक्सेल से व्हील में जाता है, फिर व्हील से लेयर्स में जाता है, पेवमेंट में जाता है, राइट। सो व्हाट इज द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ दैट व्हील, मतलब जो व्हील से कैसे जा रहा है, एक कॉन्टैक्ट एरिया के थ्रू ही तो जा रहा है ना, तो वो कॉन्टैक्ट एरिया इज एज्यूम टू बी सर्कुलर इन नेचर। तो ये वाला हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, अगर हम ये रास्ता को सेक्शन वाइज काट देंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन वाइज काट देंगे, मतलब कि तुम्हारा व्हीकल्स आर रनिंग इन दिस मोशन, ओके, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम काट दिया, यहाँ का पेवमेंट को काट के देख रहे हैं, अच्छा ये लेयर 1 है, लेयर 2 है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली द, ये जो व्हील होगा, व्हील का अगर छाप अगर ले लेंगे इम्प्रेशन, सो इट विल बी लाइक दिस, ओके। और ये वाला क्या है, एक्चुअली अगर टॉप से देखेंगे इट विल बी सर्कुलर इन नेचर, ओके। तो सर्कुलर का ये रेडियस कितना है, A है, ओके। इसके थ्रू तुम्हारा ये जो जा रहा है, देखो प्रेशर, कॉन्टैक्ट प्रेशर या ट्रायल प्रेशर हम लोग बोल सकते हैं। सो प्रेशर इज एक्टिंग ऑन अ सर्कुलर एरिया, तो ये वाला सर्कुलर प्लेट है समझो, ओके, इट इज एक्टिंग, इट इज लाइक अ सर्कुलर प्लेट। आई थिंक दिस इज क्लियर। यस मैम। ओके, तो एजम्पशंस क्या है, अब देखो इसी डायग्राम, इफ यू सी दिस, फॉलो दिस डायग्राम, यहाँ से 2-3 एजम्पशंस निकल आएगा। क्या होगा कि एजम्पशन ये है कि ये प्रेशर क्या है, दिस एरिया इज सर्कुलर इन नेचर एंड द लोड इज ट्रांसफर्ड थ्रू दिस कॉन्टैक्ट एरिया, जिसका एरिया क्या है, सर्कुलर इन नेचर है। एक एजम्पशन यही हो गया, ठीक है। दूसरा एजम्पशन क्या है, 2 लेयर होता है, ठीक है। 2 लेयर से जो पेवमेंट का लेयर होगा, ये लेयर 1 अगर हम बोलेंगे, लेयर 1 और पेवमेंट लेयर, इट इज व्हाट, इट हैज सर्टेन थिकनेस, राइट, इसका थिकनेस है जो कि H है, which is a finite number, it is not infinite number, so the thickness of this layer 1 is finite, okay, मतलब एक कुछ वैल्यू रहेगा, whereas it is what, it is finite in vertical direction, layer 1 is finite in vertical direction, and और एक एग्जाम्पशन क्या है, एंड लेयर 1 इज व्हाट, इट इज इनफाइनाइट, मतलब ये पूरा इनफाइनाइट लंबा जा रहा है, पूरा कितना स्ट्रेच का रोड है हमको नहीं पता, ये बोल रहा है इनफाइनाइट है, ठीक है। सो लेयर 1 और पेवमेंट लेयर इज फाइनाइट इन वर्टिकल डायरेक्शन बट इनफाइनाइट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये एक एजम्पशन हो गया। अब वैसे नीचे एजम्पशन में जाओ, नीचे में क्या हो गया, लेयर 2 और सबग्रेड लेयर इज व्हाट, क्या है, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, वर्टिकल डायरेक्शन में सबग्रेड के नीचे पूरा नेचुरल अर्थ है, पूरा नेचुरल सॉइल है, ठीक है। सो ये फाइनाइट इनफाइनाइट, इट विल बी इनफाइनाइट इन डेप्थ, ये सबग्रेड का कोई डेप्थ नहीं होगा, ठीक है, इट इज इनफाइनाइट, मतलब डेप्थ होगा बट इट इज इनफाइनाइट, ओके। सो इनफाइनाइट इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड इनफाइनाइट इन, ये भी इनफाइनाइट है तो ऑब्वियसली ये भी तो इनफाइनाइट ही होगा ना, पेवमेंट के नीचे तो सबग्रेड रहता है, तो पेवमेंट लेयर अगर इनफाइनाइट है तो सबग्रेड भी इनफाइनाइट हो जाएगा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ओके। सो दीज आर द 3 assumptions, ठीक है, ये जो ऑलरेडी हो गए, देखो लेयर्स आर एक्सटेंडेड इनफाइनाइट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब ये दोनों ही लेयर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनफाइनाइट है, whereas वर्टिकली लेयर 1 फाइनाइट है, लेकिन लेयर 2 और सबग्रेड लेयर इज इनफाइनाइट, ओके। ये वाला, ये 3 एजम्पशंस हो गया, ठीक है। yes, और बोला है कि ये दोनों के बीच में जो इंटरफेस है, इन दोनों के बीच में, लेयर 1 लेयर 2 के बीच में, इट शुड बी रफ, ठीक है, ये रफ होना चाहिए। और क्या बोला है, ईच लेयर इज इलास्टिक, होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। इलास्टिक, होमोजेनियस मतलब है सेम प्रॉपर्टी इन ऑल लोकेशन, मतलब इसका मटेरियल जो भी हम ले रहे हैं, इसका कोई भी लोकेशन में अगर तुम कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करोगे और यहाँ से भी कोई भी एक पॉइंट हम ले लेंगे दूसरा लोकेशन से, इट विल बी सेम, दैट मीन्स इट इज होमोजेनियस, सेम प्रॉपर्टी इन ऑल लोकेशन। एंड आइसोट्रोपिक मतलब क्या है, सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। आइसोट्रोपिक का मतलब ये है और होमोजेनियस का मतलब ये है,
ओके। एंड ये तो देखो इलास्टिक मॉड्यूलस है, मतलब ये लेयर क्या है, इट इज एक्टिंग लाइक अ इलास्टिक, रबर की तरह एक्ट करेगा ये, ठीक है। इलास्टिक मतलब क्या है, लोड दोगे इट विल डिफॉर्म, लोड को तुम हटा दो इट विल अगेन रिगेन इट्स ओन ओरिजिनल प्लेस, ठीक है। तो ये है तुम्हारा डिफरेंट, ये जो देखो टॉप लेयर इज फाइनाइट थिकनेस, बॉटम लेयर इज इनफाइनाइट थिकनेस, ओके। एंड अप्लाइड स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म ओवर अ सर्कुलर एरिया, ये जो स्ट्रेस या प्रेशर बोलेंगे ये यूनिफॉर्म है ओवर द सर्कुलर एरिया। सो दीज आर द एजम्पशंस, ये डायग्राम से तुमको पता चल जा रहा है, ओके। ये भी आ सकता है बर्मिस्टर का एजम्पशंस लिखो बोल के, ठीक है। सो बर्मिस्टर 2 लेयर का एजम्पशन लिखो, ये है एजम्पशन, ओके। नाउ लेट अस गो टू दी कि इन लोग का कंपैरिजन देखो। 2 लेयर से पहले क्या बोले थे, बहुत सारा आता है, पहले एज्यूम किया था कि पेवमेंट एक लेयर है, फिर आया 2 लेयर, फिर 3 लेयर्स, वैसे करते मल्टीपल लेयर्स आ गया, ठीक है। तो जो फर्स्ट एजम्पशन था कि ये सिंगल लेयर एज्यूम करके हम डिजाइन कर रहे थे, ठीक है, वो किसने किया था, बोस्लिनेक्स ने किया था। तो उसको मॉडिफाई करके बर्मिस्टर ने बोला नहीं, हम लोग पेवमेंट को 2 लेयर में करेंगे। इससे क्या होगा, व्हाट इज द बेनिफिट, अगर सिंगल लेयर होता है तो क्या इफेक्ट होता है और डबल लेयर होता है तो क्या इफेक्ट होता है, देखो ये डायग्राम से पता चल जाएगा। देखो ये है, सपोज ये है ये वर्टिकल डायरेक्शन है, मतलब ये डेप्थ है, ठीक है, नीचे की तरफ डेप्थ जा रहा है, ये भी नीचे की तरफ डेप्थ जा रहा है। अब देखो दोनों में से किसका डेप्थ ज्यादा लग रहा है तुमको, वन सिंगल लेयर का या 2 लेयर्स का डेप्थ? 2 लेयर, 2 लेयर्स का 2 का कैसे ज्यादा लग रहा है, देखो इतना ही तो डेप्थ है, 2 लेयर का इतना ही डेप्थ है, वेरएज इसका देखो इतना नीचे तक और नीचे तक हमको देना है डेप्थ, मतलब इसका डेप्थ बहुत ज्यादा है, राइट। अगर हम सिंगल लेयर देंगे तो थिकनेस विल बी वेरी हाई, मतलब थिकनेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम एक स्टूडेंट को रख के तुम प्रेशराइज करो, उसको पूरा प्रेशर दो, होमवर्क दे दो एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है, पर स्टूडेंट एक होमवर्क दे दो तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, राइट। वैसे ही अगर यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट को एक ही असाइनमेंट दे देंगे, बोलेंगे सब मिलकर करो, तो क्या होगा, इंडिविजुअली सबका लेस स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे लेस स्ट्रेस पड़ेगा, मतलब उन लोगों को हम लोग लेस थिकनेस दे सकते हैं, राइट। वैसे ये एक सिंगल लेयर पेवमेंट है, उसमें तुम एक लोड दे रहे हो तो वो अकेला उसको टैकल करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना है, उसको थोड़ा मोटा होना पड़ेगा, हेल्दी होना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे देखो एक तुम 2 ठो सेम टाइप का स्टूडेंट को रख दिया जो दोनों इक्वली हेल्दी है, ठीक है। तो उन लोग के लिए क्या चाहिए, मतलब 2 स्टूडेंट को रख दिया और उन लोग को हम लोड दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 स्टूडेंट जितना काम कर सकेगा जल्दी जल्दी, ये 1 सिंगल स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसका देखो ये ज्यादा थिकनेस है, वेरएज इसका लेस थिकनेस, ओके। तो वैसे ही एक लेयर अगर हम डिजाइन करेंगे, एक लेयर लेकर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो डेप्थ थोड़ा ज्यादा देना है। अगर हम 2 लेयर्स जिसका डिफरेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन ये याद रखना है सेम प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, हम बोले थे जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा लेयर का प्रॉपर्टी या मटेरियल इट शुड बी इंक्रीजिंग, ओके, इंक्रीजिंग अच्छा होना चाहिए और अच्छा क्वालिटी का देना चाहिए। तो वैसे यहाँ पे 2 लेयर का क्या हो जाएगा, अपना अपना प्रॉपर्टी है, अपना अपना स्ट्रेंथ है, ठीक है, लेकिन दोनों मिलकर वो कम डेप्थ देने से भी चलेगा, दोनों मिलकर ही वो सेम अमाउंट ऑफ लोड टैकल कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर सिर्फ सिंगल लेयर देंगे तो उसके लिए और मोटा लेयर थिकनेस देना पड़ेगा, ओके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। और ये वाला है तुम्हारा प्रेशर, देखो प्रेशर क्या हो जा रहा है, देखो इट इज स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा है, इस वाले डेप्थ में 90% हो रहा है, इस वाले यहाँ पे जब डेप्थ पहुंच रहा है 80% रिडक्शन हो रहा है, करते करते 30% रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, इतना डेप्थ में जाकर, व्हेन योर एच इज ट्वाइस ऑफ ए, वेयर ए क्या था, ए हम कंसिडर किए थे इसका रेडियस, कॉन्टैक्ट प्रेशर का रेडियस, ठीक है। तो सिंगल लेयर के लिए डेप्थ कितना हो जाएगा, मतलब कितना डेप्थ में जाके वो 30% रिडक्शन हो जाएगा। टॉप लेयर, टॉप सरफेस में क्या होता है, एकदम ऊपर ज्यादा स्ट्रेस होता है, जैसे नीचे नीचे जाओगे स्ट्रेस रिड्यूस होता होता जाएगा, ठीक है। अर्थ के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस है, जैसे नीचे नीचे जाओगे स्ट्रेस रिड्यूस होता जाएगा, अगर व्हील लोड वहां पे एक्ट कर रहा है टॉप में, ठीक है। तो कहाँ पे जाके 30% रिडक्शन हो रहा है, अगर सिंगल लेयर दे रहे तो ट्वाइस ऑफ ए में, अगर 2 लेयर्स दे रहे तो कहाँ पे जाके 30% हो जा रहा है, देखो डेप्थ व्हेन ए एच इक्वल्स टू ए, मतलब इसका डेप्थ और इसका डेप्थ 50% हो गया, ठीक है। अगर ये तुम्हारा अगर हम बोलेंगे ये 20 सेंटीमीटर का डेप्थ है तो ये 10 सेंटीमीटर का डेप्थ है,
ये 20 सेंटीमीटर नीचे जाके ये 30% रिडक्शन हो रहा है और ये 10 सेंटीमीटर में ही 30% रिडक्शन कर रहा है। ओके, सो ये है मेन फंडा। 2 लेयर देने से क्या होता है, देखो पूरा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, लेस थिकनेस दे सकते हैं। तो लेस थिकनेस मतलब लेस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, राइट। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्यों कर रहे हैं। इट इज एक्चुअली गिविंग द रेनफोर्सिंग एक्शन, मतलब दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, रेनफोर्सिंग एक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं रेनफोर्सिंग एक्शन। अब आते हैं हम लोग का जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। ओके, द फॉर्मूला विच वी विल यूज इन दिस मेथड, ये नोट डाउन करो, कॉपी में लिख लो। ओके, पहले ये क्या कॉन्सेप्ट था, दिस वाज योर डिराइव्ड बाय, दिस वाज एनालाइज्ड बाय बर्मिस्टर, तो इसलिए इसका बर्मिस्टर है। और ये 2 लेयर एज्यूम किया था, इसलिए बर्मिस्टर 2 लेयर है। और यहाँ पे हम बोले थे कौन सा एक्सपेरिमेंट वी हैव टू कंडक्ट, जो भी डाटा लगेगा इस वाले मेथड में, वो डाटा हमको कहाँ से मिलेगा, कौन से एक्सपेरिमेंट से, प्लेट लोड टेस्ट से, ये याद रखना, ठीक है। सी प्लेट लोड टेस्ट, ठीक है, यूजिंग प्लेट लोड टेस्ट। तो प्लेट लोड टेस्ट में एक फॉर्मूला यूज होता है जो कि ये वाला है, प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला, जो है डिफ्लेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ये डेल्टा को हम डिफ्लेक्शन बोलेंगे। अब देखो 2 फॉर्मूला दिया गया है, 2 फॉर्मूला में क्या बोला है, देखो डिफ्लेक्शन अंडर रिजिड प्लेट, ओके, डिफ्लेक्शन अंडर रिजिड प्लेट ओवर सॉइल सबग्रेड और ओवर पेवमेंट, मतलब कि तुम रास्ता है, पेवमेंट है या सबग्रेड है, जो भी है, ठीक है, सबग्रेड होता है, सबग्रेड के ऊपर पेवमेंट होता है, राइट, फिर टॉप सरफेस, मतलब वहां पर ही तुम्हारा व्हील चलता है। सो अगर हम कंडक्ट करेंगे टेस्ट, 2 लेयर्स में कंडक्ट कर सकते हैं, एक है कि नीचे लेयर 1 में भी कंडक्ट कर सकते हो और लेयर 2 के ऊपर भी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो सपोज ये अगर प्लेट हुआ है, ये अगर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है, तो हम इसको इस वाले में बिठा के भी टेस्ट कर सकते हैं और इस वाले में बिठा के भी टेस्ट कर सकते हैं। ओके, इसलिए सबग्रेड और पेवमेंट बोल दिया है। अगर हम टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा, हमको ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है। व्हेन वी आर यूजिंग प्लेट लोड टेस्ट, अगर हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं तो तब जो भी फॉर्मूला यूज होता है, दिस इज दिस वन, ओके, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी विल यूज व्हेन वी आर यूजिंग प्लेट, मतलब सॉलिड रिजिड प्लेट यूज करके हम प्लेट लोड टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला चाहिए, विच इज डेल्टा इज इक्वल्स टू 1.18, ये स्मॉल p है, ओके, स्मॉल p a इंटू F2 बाई ES। अच्छा ये बोलो तो स्मॉल p क्या होगा, एनीवन, व्हाट इज दिस स्मॉल p? हाँ, स्मॉल p, कैपिटल P तो व्हील लोड बोल रहे हैं, ठीक है, तो स्मॉल p क्या है, डेप्थ लोड नहीं, स्ट्रेस प्रेशर है, प्रेशर, स्ट्रेस, हाँ, ठीक है। एक है लोड केजी में होता है, ठीक है, या टर्न्स में होता है, और एक है प्रेशर, मतलब पर यूनिट एरिया कितना लोड है, ठीक है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब। सो स्मॉल p इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली द कॉन्टैक्ट प्रेशर, ओके, ठीक है। और a क्या है, a इज द रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया। हम बोले थे कि तुम्हारा अगर ये पेवमेंट हो गया, सपोज ये पेवमेंट लेयर्स है, ठीक है, तुम्हारा व्हील लोड ऐसा है, ठीक है, यहां से तुम्हारा कैपिटल P लोड हम लोग अप्लाई करते हैं, व्हील लोड। तो इसका छाप कैसा होता है, वी हैव एज्यूम दैट इट विल बी सर्कुलर इन नेचर, ठीक है, इसका छाप सर्कुलर होता है जिसका रेडियस इज a, ओके। तो ये वाला सर्कुलर एरिया को बोलते हैं कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है, और इसका रेडियस को बोलते हैं कॉन्टैक्ट रेडियस, ओके, ठीक है, क्लियर है ना। अब ये वाला बोलो, प्लेट का जो भी रेडियस होगा ऑब्वियसली उसका छाप भी वैसा ही होगा, ठीक है। तो प्लेट का जो भी रेडियस है या एरिया है जो इम्प्रिंट होगा उसका भी वही रेडियस और एरिया होगा। सो दिस इज यूज्ड फॉर व्हाट, दिस इज यूज्ड फॉर योर रिजिड प्लेट कंडीशन। अगर रिजिड प्लेट कंडीशन कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे A क्या होगा, देन A विल बी द रिजिड प्लेट का कॉन्टैक्ट, सॉरी रिजिड प्लेट का रेडियस, ओके, एंड दैट प्लेट विल बी आल्सो सर्कुलर इन नेचर। तो इसके लिए हम लोग लेट अस सी एक एग्जांपल देखते हैं। ऐसा होता है जिसके ऊपर हम लोग टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, ओके, यस मैम, इट इज सर्कुलर इन नेचर, राइट। इसके ऊपर लोड जाएगा, इसके ऊपर लोड देंगे हम, विल लोड या जो भी लोड देकर वी विल कंडक्ट द टेस्ट, ओके। तो ये लोड की वजह से क्या होगा, इट विल डिफॉर्म,
ठीक है, ये डिफॉर्म करेगा। तो डिफॉर्म करने के बाद जो डेल्टा है, दिस इज दैट डेल्टा, ये जो डेल्टा, ठीक है। तो ये जो डेल्टा का वैल्यू किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर हम जो लोड देंगे, ठीक है, तो वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फ्रॉम दिस एरिया विच इज सर्कुलर इन नेचर। सो लोड पर यूनिट एरिया विल गिव यू व्हाट, स्मॉल p प्रेशर, ठीक है। और इसका एरिया कितना है, अगर इसका बोलेगा कांटेक्ट एरिया कितना है, तो प्लेट का एरिया कितना है, वही कांटेक्ट एरिया होगा, राइट। सो प्लेट का रेडियस जितना है वही कांटेक्ट रेडियस होगा। तो इसका जो भी रेडियस है, मतलब ये वाला अगर ये सेंटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी सेंटर ए है, दैट इज योर ये वाला वैल्यू, ये वाला ए है, ठीक है। और ई एस क्या बोले थे, ई एस, ई क्या है, ई एस इलास्टिक मॉड्यूलस है, और सफिक्स में एस है, मतलब ये किस चीज का है, पेवमेंट का है ना सबग्रेड का है। ये इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ कौन सा लेयर का होगा, देखो कौन सा लेयर का है, सबग्रेड लेयर का ना, तो सबग्रेड का सफिक्स एस, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी वैल्यू है ई एस इज व्हाट, इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड, ओके। और यहाँ पे एक्स्ट्रा एक टर्म आ रहा है विच इज F2, वो डिफ्लेक्शन फैक्टर है, वो हमको चार्ट से मिल जाएगा, ओके। ये वाला बाद में हम बोलेंगे F2। ये नोट डाउन किया तुम लोगों ने। तो ये वाला टेस्ट जब हम करेंगे, प्लेट लोड टेस्ट, ठीक है, देखो ऐसा सेट करना पड़ेगा गाड़ी के नीचे, ठीक है, करके फिर ये लोड देगा, ठीक है। लोड की वजह से क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो वही डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला ये वाला है, ऐसे लोड दे रहा है, यहाँ पे प्रेशर देगा, लोड की वजह से लोड आएगा इस एरिया के थ्रू, प्रेशर होके, मतलब लोड बाय डिवाइडेड बाय एरिया विल गिव यू द प्रेशर, ठीक है। पी निकल आएगा, इसका रेडियस हमको पता है, राइट, इट विल बी प्रोवाइडेड और गिवन, राइट। सो ए बी, स्मॉल ए बी निकल आएगा, तो हमको क्या चाहिए, डिफ्लेक्शन मेजर करना है डायल गॉज से, ठीक है। तो ये प्लेट लोड टेस्ट, इसीलिए हम लोग को वो जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे कहाँ से, ये प्लेट लोड टेस्ट से, ठीक है। सो ये डेल्टा हमको मिल जाएगा, ओके, क्लियर है, यस मैम, ओके। अब देखो, अब ये वाला तो क्या है, ये वाला किसके ऊपर कर रहा था लोड, हम लोग प्लेट के ऊपर, रिजिड प्लेट, क्यों रिजिड, ये रिजिड प्लेट है ना, ठीक है। अब हम लोग फिर से वैसा ही, डिफ्लेक्शन कब होगा बोलो, ये तो मैनुअली, मतलब एक्सटर्नली क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करके, एक्सपेरिमेंट करके हम डिफॉर्मेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, इतना लोड देने से कितना डिफॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकली जाएंगे, मतलब जब हम लोग फील्ड में, जब तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या लोड आएगा, रास्ते के ऊपर क्या लोड आता है, ये तो एक्सपेरिमेंट करके हम लोड दे रहे हैं, प्लेट के थ्रू लोड दे रहे हैं, ठीक है, लोड दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअली पेवमेंट के ऊपर क्या क्या लोड आ रहा है, पेवमेंट के ऊपर क्या चलता है बोलो, व्हीकल लोड, व्हीकल, राइट, व्हीकल लोड, मतलब यहाँ पे क्या लोड आएगा, व्हीकल से एक्सल, एक्सल से व्हील, राइट। सो एक्चुअली पेवमेंट के ऊपर इन प्रैक्टिकल कौन सा लोड आएगा, व्हील लोड, ठीक है। तो हमको अब व्हील लोड इज व्हाट, व्हील इज नॉट अ रिजिड प्लेट, इट इज अ फ्लेक्सिबल प्लेट, ओके। तो रिजिड प्लेट है तुम्हारा ये वाला हो गया। अब फ्लेक्सिबल प्लेट के लिए फॉर्मूला क्या है, फ्लेक्सिबल प्लेट मतलब यहाँ पे क्या है, व्हील के लिए, ठीक है। तो जब व्हील आएगा तो कैसा डिफॉर्मेशन होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है। आई थिंक दिस इज क्लियर, ये है फॉर्मूला, सी सेम फॉर्मूला यहाँ पे 1.18 है, यहाँ पे 1.5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, P वही है, कांटेक्ट प्रेशर, जो भी प्रेशर उसके ऊपर व्हील लोड के थ्रू जा रहा है, ठीक है, पेवमेंट के ऊपर। A इज व्हाट, अब यहाँ पे A क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा कांटेक्ट एरिया का रेडियस, ठीक है, ये वाला A, ठीक है। और ये वाला A क्या था, दिस इज द रेडियस ऑफ द प्लेट, मतलब कांटेक्ट एरिया का ही रेडियस विच इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द प्लेट, क्योंकि प्लेट का देखो जितना एरिया है उसी एरिया के थ्रू ही तो जाएगा, तो वही कांटेक्ट एरिया होगा, ठीक है। और यहाँ पे A क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ द कांटेक्ट एरिया, ये A है। सेम फॉर्मूला ES F2, F2 क्या है देखो, डिफ्लेक्शन फैक्टर है। ये नोट डाउन हो गया, ये दो फॉर्मूला क्लियर है ना। तब कौन सा क्या करना है, रिजिड प्लेट जब यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, जब हम लोग व्हील लोड यूज करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला, ओके क्लियर। अब जाते हैं स्टेप्स में, डिजाइन स्टेप, ठीक है। डिजाइन स्टेप क्या है,
डिजाइन स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है हमको, डिटर्मिनेशन, ये स्टेप वाइज लिख लो तुम लोग, स्टेप लिख लो, ठीक है। स्टेप इज व्हाट, डिटर्मिनेशन ऑफ, अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ सॉइल सबग्रेड। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमको ES फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है वी हैव टू डिटरमाइन E सफिक्स x, मतलब सबग्रेड का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, वी हैव टू कंडक्ट प्लेट लोड टेस्ट। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, वी विल कंडक्ट प्लेट लोड टेस्ट। अब बोलो प्लेट लोड टेस्ट किसके ऊपर करेंगे, सबग्रेड का निकालने के लिए बोला है, राइट। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, वी विल कंडक्ट प्लेट लोड टेस्ट ऑन द सॉइल सबग्रेड, ओके। अब बोलो जब हम लोग प्लेट लोड टेस्ट मतलब सॉइल सबग्रेड के ऊपर डायरेक्टली कर रहे हैं तो वहां पे क्या पेवमेंट रहेगा, इन दैट केस योर पेवमेंट लेयर 1 नहीं होना चाहिए ना, तभी तो तुम लेयर 2 के ऊपर टेस्ट करोगे। अब लेयर 2 जैसे ये वाला होगा, देखो हमको ये सबग्रेड के ऊपर प्लेट लोड टेस्ट करना है, मतलब यहाँ पे तुमको वो प्लेट को रखना है, ठीक है। फिर गाड़ी का प्रेशर, मतलब जो भी है प्रेशर दे के उसका डिफ्लेक्शन निकालना है, ठीक है। तो अगर ये लेयर 1 रहेगा तो ये पॉसिबल होगा, इज इट पॉसिबल टू कंडक्ट द प्लेट लोड टेस्ट ऑन दिस? नो मैम, नो मैम, नो। तो ये लेयर 1 नहीं होगा तब, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में लेयर 1 होगा ही नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये सबग्रेड के ऊपर। सो इन फर्स्ट केस योर H विल बी व्हाट, H क्या होगा, लेयर 1 तो है ही नहीं, तो H क्या होगा, 0, ठीक है। 0। तो हाँ वही यहाँ पे किया, देखो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या है, सो सॉइल ग्रेड के ऊपर, सॉइल सबग्रेड के ऊपर कर रहे हैं, सो ये H विल बी 0, ठीक है। अब ये देखो ये प्लेट बिठा दिया, दिस इज ये वाला है तुम्हारा सबग्रेड का टॉप लेयर, ठीक है। सबग्रेड है इसके नीचे, अब डिफॉर्मेशन हो रहा है, प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज द रिजिड प्लेट और ये वाला कॉन्टैक्ट रेडियस है, मतलब प्लेट का रेडियस है A, ठीक है। ये क्लियर है। अगर H 0 है तो H by A will also be 0, obviously 0 by something will be 0 only, right? And in this case since there is no layer, so ES by EP will be 1, ठीक है। ES by EP will be 1 in this case, ये याद रखना है, ओके। क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा लेयर है ही नहीं, दोनों मतलब यस मैम, ये रेशियो विल बी 1, ओके। एंड F2 विल आल्सो बी 1, ये एज्यूम कर लेना है। एज्यूम नहीं करना है, इसके लिए तुम चार्ट से भी कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट में ये दोनों एज्यूम करना है कि H is 0, ES by EP is 1, F2 is 1। तो ये वाला क्या टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, वी आर कंडक्टिंग प्लेट लोड टेस्ट। अगेन प्लेट लोड टेस्ट में जो प्लेट यूज कर रहे हैं दैट इज रिजिड प्लेट। देन विच फॉर्मूला वी हैव टू यूज, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम दोनों में से, फर्स्ट और सेकंड में? फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला हम लोगों ने यूज किया है, ठीक है। तो यहां से यूजिंग दिस फॉर्मूला स्टेप क्या था, डिटरमाइन ES, ओके। तो तुमको प्लेट लोड टेस्ट से हम बोले थे क्या क्या डाटा मिल जाएगा, तुमको प्रेशर मिल जाएगा, इसका प्लेट का रेडियस कितना है वो भी पता रहेगा, ठीक है। डेल्टा कितना है, मतलब डिफॉर्मेशन कितना हुआ फॉर दैट पर्टिकुलर प्रेशर, वो भी निकल आएगा, ठीक है। एंड F2 वी हैव सेड वी विल अज्यूम इट एज 1। फर्स्ट स्टेप के लिए मतलब सिंगल लेयर के लिए F2 विल बी 1। तो देखो एवरीथिंग इज नोन, ठीक है। ये डेल्टा 1.18 PA F2 by ES में से क्या क्या नोन है, डेल्टा नोन, राइट, डेल्टा नोन, ओके। P नोन, A नोन, F2 also नोन। तो अननोन क्या है, सिर्फ ES। सो यहाँ से ES का वैल्यू निकल आएगा। क्लियर फर्स्ट स्टेप? यस मैम, ठीक है, हाँ, ओके। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो अब वी हैव टू फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ F2, ठीक है, फॉर सेम कंडीशन। हम लोग फिर से प्लेट लोड टेस्ट ही करेंगे, लेकिन अब हमको नया वैल्यू ऑफ F2 चाहिए। पहले में क्या किए थे, F2 1 पकड़े थे सिंगल लेयर के लिए, ठीक है। अब नया वैल्यू ऑफ F2 जब लेंगे तो क्या करेंगे, नाउ वी विल कंडक्ट दिस प्लेट लोड टेस्ट ऑन दी लेयर 1, मतलब पेवमेंट लेयर के ऊपर, ओके। दैट इज बेस कोर्स, मतलब पेवमेंट लेयर को हम पकड़ लिया कि वो बेस कोर्स है ऑफ सर्टेन थिकनेस H, मतलब ये लेयर 1 के ऊपर अब हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे ये जो हो गया इसके ऊपर अब टेस्ट करेंगे, लेयर 1 के ऊपर, ठीक है। अब ये वाला के ऊपर हम लोग प्लेट लोड टेस्ट सेम जैसे सबग्रेड के ऊपर किया था इसके ऊपर किया था, लेकिन यहाँ पे H विल नॉट बी, H का वैल्यू 0 होगा? नहीं मैम, नहीं, क्योंकि लेयर 1 हम
ले कर दिया है, सबग्रेड के ऊपर लेयर 1 ले करके अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो इसका सर्टेन वैल्यू होगा, एच का एक वैल्यू होगा, ओके, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, ओके। तो एच का वैल्यू यू विल बी नोन टू यू, एच का वैल्यू अगर पता रहेगा, ए का वैल्यू भी हमको पता ही है, ये प्लेट फ्लोट का रेडियस कितना वो पता ही है, सो वी कैन इजीली we will also know the value of h by a, ये तो कंफर्म है, h by a हमको याद रहेगा, ठीक है, पता रहेगा हम लोग को। तो देखो ये वाला कर दिया, सबग्रेड है, बेस कोर्स कर दिया, दिस इज ईपी, दिस इज ईएस, क्योंकि ये पेवमेंट को ही हम लोग बेस कोर्स पकड़ ले, सो ईपी ईएस, ओके। और इसके लिए डिफ्लेक्शन कंडक्ट करेंगे, प्लेट लोड टेस्ट, जिसका पी है प्रेशर के लिए, रेडियस इज सेम, प्लेट तो वही है, राइट, रेडियस जो ऊपर दिया था वही ए है, एंड दिस डिफ्लेक्शन वी विल गेट फ्रॉम द टेस्ट, ओके, एंड एच विल बी प्रोवाइडेड, ओके। अब ये वाला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, अगेन फर्स्ट फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग प्लेट लोड टेस्ट ही कर रहे हैं, मतलब रिजिड प्लेट को लेकर ही टेस्ट कर रहे हैं, सो रिजिड प्लेट का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या पता है, देखो इसमें से दिस विल बी वी विल गेट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, डेल्टा पता चल जाएगा, पी और ए तो हमको पता ही है, ठीक है। ईएस वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप में हम बोले थे ना ईएस कैलकुलेट करना है, तो वो वाला वैल्यू यहाँ पे बिठा देना, सो सिर्फ अननोन रहा कौन सा, F2, ओके, सो कैलकुलेट F2, क्लियर? यस मैम। ओके, सो सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट, ठीक है, ये दोनों स्टेप क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, नाउ फॉर कैलकुलेटेड न्यू वैल्यू ऑफ F2, फर्स्ट स्टेप में F2 1 था, अब इस हिसाब से हम लोग क्यों 1 था, क्योंकि वो सिंगल लेयर था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब सेकंड स्टेप में हम दूसरा लेयर 2 लेयर्स का कर रहे हैं, तो 2 लेयर्स के लिए F2 का नया वैल्यू कैलकुलेट किए हैं, ओके। सो F2 का वैल्यू हमको पता है, वी ऑल्सो नो द वैल्यू ऑफ h बाई a, क्यों, ये h इज गिवन, ये a इज ऑल्सो गिवन, सो h बाई a भी हमको पता रहेगा। नाउ यूजिंग दिस टू वैल्यू F2 एंड h बाई a वैल्यू, व्हाट वी विल डू, we will determine the ratio of elastic modulus, okay, ये रेशियो हमको निकालना है, which is ES by EP। देखो बहुत सारे चार्ट्स में उल्टा भी दे देता है, ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग यही कंसिडर करो कि ES by EP हमको रेशियो निकालना है, बहुत सारे चार्ट से तुमको EP by ES भी दे देता है, ठीक है, तो एक्चुअली बेसिकली हमको रेशियो निकालना है, अब वो ES by EP भी हो सकता है, EP by ES भी हो सकता है, ओके। अब आते हैं यहाँ पे ये वाला चार्ट सी, तो हमको क्या चाहिए था, अब निकालना है क्या क्या, वी नो वैल्यू ऑफ F2, वी नो वैल्यू ऑफ h by a, यूजिंग दिस टू वैल्यू वी हैव टू फाइंड ES by EP, ओके। तो कैसे पता चलेगा, देखो इसका भी 3x मतलब 3 डाटा है, यहाँ पे इस चार्ट में 3 डाटा है, क्या क्या है, एक है इस तरफ देखो h by a, x एक्सिस इज गिविंग यू h by a वैल्यू, ठीक है, y एक्सिस इज गिविंग यू F2 वैल्यूज, ओके, एंड ये जो कर्व है, ये जो ईच कर्व इंडिविजुअल कर्व इज गिविंग यू ES by EP वैल्यू, ये क्लियर है ना। अब ये वाला चार्ट में देखो ES by EP इज लेसर देन 1, सब देखो ES by EP इज लेसर देन 1, ओके, ES by EP इज लेसर देन 1, क्यों, ये ग्रेटर देन 1 वैल्यू क्यों नहीं है, बोलो। ES by EP is less than 1 मतलब क्या है, ES का वैल्यू will be lesser than EP का वैल्यू, राइट, मतलब सबग्रेड का मॉड्यूलस will be lesser than मतलब सबग्रेड तुम्हारा पेवमेंट का मॉड्यूलस, क्यों ऐसा है, What I said, as we go up, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, लेयर्स ऊपर की तरफ जाएगा, मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या होता जाएगा, बेटर होता जाएगा, तो ना कि वर्स होता जाएगा, बेटर होता जाएगा, मतलब वैल्यू विल गेट इंक्रीजिंग, राइट, उसका जो भी प्रॉपर्टीज है उसका वैल्यू इंक्रीज, अच्छा क्वालिटी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए EP इज ग्रेटर देन ES, ओके, और वी कैन से ES इज लेसर देन EP, मतलब EP ऊपर लेयर में है, ES नीचे है, तो ऑब्वियसली ES विल बी लेसर देन EP, राइट। तो यही इसीलिए ये दोनों का रेशियो इज लेस देन 1 इस वाले चार्ट से, तो समझ लेना चाहिए, अगर ऐसा चार्ट दिया है जिसमें लेसर देन 1 का वैल्यू है, मतलब ये रेशियो क्या है, दिस इज ES एंड दिस इज EP, ओके। कुछ वैल्यू में कुछ चार्ट में उल्टा दे देता है, ग्रेटर देन वैल्यूज आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे 2, 3 या 5, 10, 20 ऐसा दे देता है, तो समझ लेना है दैट इज योर EP by ES रेशियो, नॉट ES by EP रेशियो। ये क्लियर है या नहीं है, पहले ये बोलो।
नो क्लियर है। क्लियर है ना? मतलब कुछ कुछ चार्ट्स में ये क्या देता है, 1/2 नहीं देता, 2 देता है, फिर 5, 10 ये सब देता है। मतलब क्या है, दैट इज रेशियो ऑफ व्हाट, EP/ES। ठीक है, उस चार्ट में जो भी रेशियो, वो जो भी ये 2, ये जो भी वैल्यू है, दैट इज व्हाट, EP/ES। ठीक है, अगर ये लेसर देन 1 वैल्यू जैसे यहाँ पे दिया गया है, मतलब ये क्या है, ES/EP वैल्यू दिया है। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। अब निकालना कैसे, देखो सपोज यहाँ से कोई भी एक H/A वी नो। ओके, सपोज H/A हम बोलेंगे 2 है। ठीक है, H/A का वैल्यू तुम्हारा कितना है, 2 है, निकला है 2। ठीक है, और तुम्हारा सपोज डिफ्लेक्शन वैल्यू है कितना, 0.1। ठीक है, क्लियर। अब तुम इसको क्या करोगे, इधर से जाओ 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 सीधा। ठीक है, और इसको भी इधर से लेकर आओ। ठीक है, अब देखो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, they are intersecting somewhere here, right? यस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो 1 अगर इधर इस तरफ जाओगे तो यहाँ पे मिल रहा है, 2 अगर इस तरफ जाओगे तो यहाँ पे मिल रहा है। सो इट इज समवेयर हियर, राइट? तो इसका ES/EP वैल्यू कितना होगा, अगर बोलेगा ES/EP वैल्यू कितना होगा, फॉर H/A इक्वल्स टू 2 एंड फॉर F2 या डिफ्लेक्शन फैक्टर इक्वल्स टू 0.1। एनीवन? तो अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, ये लाइन ड्रॉ करोगे तो हमको लाइन ड्रॉ करना है क्योंकि हमको ES/EP चाहिए, राइट? और ये जो कर्व है ये सब क्या है, ES/EP है। तो हम बोले थे ये 1 के लिए इधर है, 2 के लिए इधर है, तो आके इट विल बी समवेयर हियर, राइट? अगर हम ड्रॉ करेंगे तो, ओहो सॉरी, तो इट विल बी समवेयर हियर। तो 1 और 2, ये वाला था 2, राइट? तो एक ऐसा लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है, जो इट विल क्रॉस समवेयर हियर। ठीक है, अब ये वाला लाइन देखो किस और किसके बीच में है, कौन सा लाइन के बीच में है, ये वाला लाइन। एक है 1/100 और दूसरा है 1 नीचे वाला का लाइन क्या है, 1/200। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये वाला लाइन जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू भी इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए, राइट? तो कितना होगा ये, इट इज डिपेंडिंग अपॉन यू। ओके, 150 हो सकता है। 150 तो एकदम यहाँ से जाएगा, एकदम बीचों बीच से जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा इस तरफ है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 1/190। 190, हाँ 190 भी हो सकता है। हाँ 180, वो बोला तो ये इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, जो कर रहा है उसके ऊपर कैसे कर सकते हो। ठीक है, वो वैरी कर ही सकता है। ओके, तो ऐसे करके कैलकुलेट करना है हमको। सो ये भी तुम्हारा ये वाला नेक्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड स्टेप। ठीक है, अब तुमको क्या पता चल गया कि हमारा मटेरियल या लेयर्स का प्रॉपर्टी ऐसा होना चाहिए। सपोज 1/190 आया हम लोग का। ठीक है, मतलब हम लोग का जो भी मटेरियल हम यूज करेंगे, जो भी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, उन लोग मतलब उसमें लेयर 1 और लेयर 2 का रेशियो क्या होना चाहिए, यंग मॉडुलस का रेशियो तुम्हारा 1/190 रखना चाहिए। क्लियर है ये वाला, फॉर दिस केस, ये वाला एग्जांपल के लिए। Yes. ठीक है, मतलब कि मटेरियल का प्रॉपर्टी ऐसा होना चाहिए जो हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब जाएंगे हम वो फिक्स कर देंगे कि अच्छा ES/EP विल बी 1/190, ये फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नाउ अगेन वी हैव टू डिटरमाइन F2। ठीक है, F2 हमको फिर से डिटरमाइन करना है। क्यों? बिकॉज अब लोड तो प्लेट लोड टेस्ट तो हम लोग सिर्फ कुछ टाइम के लिए कर रहे हैं, राइट? सिर्फ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली लोड किससे आएगा, एक्चुअली लोड व्हील से आएगा, राइट? तो व्हील लोड से आएगा। तो अब हमको देखना है कि व्हील लोड के लिए तुम्हारा F2 का वैल्यू क्या है। ये F2 का वैल्यू किसके लिए था, इट इज फॉर रिजिड प्लेट के लिए था F2 का वैल्यू। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको व्हील लोड के लिए F2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे अब व्हील लोड के लिए F2 का वैल्यू? तुमको व्हील लोड दिया रहेगा, बोलेगा कि अच्छा व्हील लोड इतना जाएगा, उस रास्ते से ऐसा टाइप का व्हील लोड जाएगा। ठीक है, जिसका कॉन्टैक्ट रेडियस उतना होगा, ये भी हमको पता है। मतलब P विल बी गिवन, A विल बी गिवन। ठीक है, ES, अब सबग्रिड तो एक ही है, सबग्रिड के ऊपर तो तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते, सबग्रिड लेयर विल बी सेम।
फॉर बोथ द केस, अगर रिजिड प्लेट रखो या तुम्हारा दूसरा प्लेट रखो, फ्लेक्सिबल या व्हील लोड ही दो, ES विल बी सेम। सो ये वाला कांस्टेंट है, जो फर्स्ट स्टेप से मिला वही यहाँ पे रहेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नोन। डिफ्लेक्शन भी तुमको दिया रहेगा, ओके, कि ये डिफ्लेक्शन इतना हो सकता है फॉर सच एंड सच कंडीशन, ये भी दिया रहेगा, ओके। तो रहेगा कौन सा, ओनली F2। सो दिस इज व्हाट नाउ व्हाई वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, बिकॉज हम लोग बोले थे कि व्हील लोड के लिए कैसा होगा F2 का वैल्यू। सो अब व्हील लोड के लिए कौन सा इक्वेशन है, रिजिड प्लेट के लिए क्या था 1.18 था, अब व्हील लोड के लिए इट विल बी 1.5, ओके। So your F2 will be your this वाला, ये वाला इक्वेशन, यहाँ पे P will be known, A will be known, ES will, we have already calculated from step 1 and delta will be known. So calculate F2, सिंपल है। ये देखो अब वो प्लेट हटाकर हम व्हील लोड दे दिया, ठीक है। ये P है प्रेशर, ये कॉन्टैक्ट एरिया, रेडियस है तुम्हारा, डिफ्लेक्शन विल बी नोन, ठीक है। अब हमको एक्चुअली डिजाइन क्या करना है, हमको डिजाइन करना है थिकनेस, कितना थिकनेस देना है। देखो ये वाला H क्या था, इस वाले में H इट इज गिवन, मतलब किस लिए गिवन, व्हेन वी आर कंडक्टिंग प्लेट लोड टेस्ट, उसके लिए H डिफाइन कर दिया था, ठीक है। बट हम लोग को एक्चुअली में कितना थिकनेस देना चाहिए फॉर व्हील लोड कंडीशन, तो यहाँ पे अब हमको वही H डिटरमाइन करना है। सो इन दिस केस H इज अननोन, ओके, इज इट क्लियर? ये कंफ्यूजन मत हो जाना, ठीक है। इसमें डिजाइन थिकनेस, ये वाला H इज डिजाइन थिकनेस, हमको ये डिजाइन करना है फॉर व्हील लोड, और ये वाला H क्या था, दिस H वाज फॉर प्लेट लोड टेस्ट के लिए कितना H दिया है वो था, डिफाइन किया था, ठीक है। दिस टू आर डिफरेंट, क्योंकि ये प्लेट लोड टेस्ट अलग चीज है, रिजिड प्लेट है, और जो एक्चुअल व्हील लोड आएगा वो अलग चीज है, विच इज फ्लेक्सिबल प्लेट। तो उसके लिए H कितना होगा, तो पहले उसके लिए F2 कितना होगा वो निकालो, क्लियर। F2 हमको पता चल गया है, ठीक है। अब हमको ES/EP कितना रहना चाहिए वो भी पता चल गया है, कि मटेरियल का प्रॉपर्टी का रेशियो कैसा होना चाहिए, ये भी हमको पता चल गया है। देन तो इस वाले चार्ट से हमको क्या निकल आएगा, वी नो द वैल्यू ऑफ ES, वी नो द वैल्यू ऑफ F2, सो व्हाट वी विल गेट, EP। EP জানো দরকার, EP তো দরকারই না। ES, ये चार्ट से क्या दिखाई दे रहा है, देखो ES तुमको पता है, अब ES/EP तुमको पता है, F2 तुमको पता है, ठीक है। अब क्या निकल आएगा, ये एक्सिस निकल आएगा, राइट, ये वाला एक्सिस का वैल्यू निकल आएगा, और ये वाला एक्सिस का वैल्यू क्या है, H/A है, ठीक है। अब देखो यहीं पर H आ जा रहा है, सो दिस इज योर थिकनेस जो हमको चाहिए, एक्चुअल थिकनेस जो चाहिए, ठीक है। तो देखो अब नाउ F2 obtained from step 4, ES/EP obtained from step 3. Now use the chart and find what, H/A, ठीक है। हमको तो वही चाहिए, what is here unknown, मेन क्या है, डिजाइन द थिकनेस, पेवमेंट थिकनेस, पेवमेंट डिजाइन मतलब पेवमेंट थिकनेस, H का वैल्यू चाहिए, राइट। सो वही H/A अगर पता रहेगा, A तो गिवन है, A is known, so we can easily calculate H, right? So is it clear? Yes ma'am। ठीक है। स्टेप अगर हम फिर से करेंगे तो क्या क्या है, फर्स्ट ES निकालो यूजिंग रिजिड प्लेट लोड टेस्ट फॉर्मूला, तो रिजिड प्लेट से ES निकालना है, बाकी सब दिया रहेगा। F2 वी हैव टू एज्यूम 1, ठीक है। स्टेप 2 में क्या दिया रहेगा, स्टेप 2 में हमको क्या चाहिए, अब हम लोग टेस्ट किसके ऊपर कर रहे हैं, वी आर कंडक्टिंग टेस्ट ओवर द पेवमेंट लेयर ऑफ सर्टेन थिकनेस, मतलब H हमको गिवन है प्लेट लोड टेस्ट के लिए, तब H गिवन है, ठीक है। Since we are conducting plate load test, so we have to use this equation. यहाँ पे भी P पता है, A पता है, ES फर्स्ट स्टेप से आ गया, डेल्टा विल बी गिवन, ओके। सो F2 निकालो, ठीक है। अब F2 निकल आएगा, F2 हमको पता है, H/A पता है, यूजिंग दिस टू वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ES/EP। अब ये वाला फिक्स कर देंगे हम अपने डिजाइन के लिए, ES/EP, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट F2 फॉर व्हील लोड कंडीशन, ठीक है। वो वाला था फॉर रिजिड कंडीशन, नाउ दिस इज फॉर व्हील लोड कंडीशन। अब व्हील लोड जब भी आता है मतलब दिस इज फ्लेक्सिबल व्हील, फ्लेक्सिबल प्लेट, तो फ्लेक्सिबल प्लेट का ये फॉर्मूला है, यहाँ पे भी P पता है, A पता है, ES तो हम लोग फर्स्ट स्टेप से कैलकुलेट कर ही लिए, सबग्रेड इज सेम, सॉइल का नेचुरल सॉइल तो तुम्हारा सेम ही है, सबग्रेड इज सेम, डिफ्लेक्शन भी पता आएगा, तो F2 निकालो। अब हमको F2 पता है, इस स्टेप से ES/EP हमको निकल आया है, अब निकालना क्या है, H/A, ओके, सिंपल। सो मतलब ये वाला जो है ES/EP ये सब पता है, पहले मैंने क्या किया था, H/A पता था, F2 पता था, ES/EP निकाला, अब उल्टा करना है, ES/EP पता है, F2 पता है, H/A निकालना है,
ओके, सपोज इसका एक एग्जांपल देते हैं कि कैसे करना है। सपोज योर ES by EP केम आउट टू बी 1/100, ये है। सपोज कैलकुलेट करके तुम्हारा ES by EP सपोज आया था हम लोगों का 1/100, ठीक है। अब तुम्हारा नया F2 का वैल्यू अगर आया है सपोज 0.1, ठीक है, तो 0.1 इस तरफ से जाओ, F2 का वैल्यू 0.1 है और ये तुम्हारा ES by EP इज 1/100, मतलब ये वाला लाइन कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ये वाला लाइन को यहाँ पे, ठीक है, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। अब इसका परपेंडिकुलरली नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाके देखो यहाँ पे H by A का वैल्यू क्या है। ये अगर 2 है, 2.5 है, ये 2.75 हम लोग पकड़, मैं 11/9 हो गया सर का क्लास। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो H by A विल बी फ्रॉम दिस ग्राफ क्या होगा, 2.75 हो जाएगा। तो H by A का वैल्यू 2.75 है, A is known, so we can easily calculate H का वैल्यू, right? So in this way we have to design the थिकनेस, ठीक है, ये वाला है फाइनली। तो तुम लोग आज ये पूरा देख लो कैसा है स्टेप, ठीक है। अगर डाउट है तो पूछ लेना, वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके, इन द नेक्स्ट क्लास। ओके मैम। ओके, वेट, लेट मी टेक द अटेंडेंस। ओके, थैंक यू देन। थैंक यू मैम। थैंक यू आज क्लास करने के लिए सुबह, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, जा सकते हो। फिर मैम ट्यूसडे को क्लास होगा, मंडे को छुट्टी है, नोटिस मिला है? हाँ हाँ हाँ, मंडे को छुट्टी है। ठीक है मैम। ओके।